Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 29th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. And we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about changed domicile rules for Jammu and Kashmir. And this topic is important from our syllabus paper 2 Indian polity point of view. So let us first of all see what this article is all about. This article talks about changed constitutional status of Jammu and Kashmir. As we all know that last year on 5th August 2019, the government of India through a resolution changed the special status of Jammu and Kashmir that was guaranteed to it under Article 35A and Article 370 of the Indian Constitution. So Article 35A and Article 370 was de-operationalized, and with this the special status of Jammu and Kashmir was seized. And apart from this, a law was also brought named Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, and according to this new law, Jammu and Kashmir, that was a state till then, was reorganized into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. So let us briefly see how the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 reorganized Jammu and Kashmir, the state. You see, the state Jammu and Kashmir was represented territorially like this, and then as a result of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, it was reorganized into two union territories, Ladakh union territory without assembly and Jammu and Kashmir a union territory with assembly. So before reorganization of the Jammu and Kashmir state, there was a law, there was a provision according to the Indian Constitution guaranteed under Article 35A itself, that the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir had power to determine about permanent residentship status of people living in Jammu and Kashmir. तो जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले कौन कौन से लोग जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट कहे जाएंगे, उसका फैसला करने का अधिकार दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 35A. एंड जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस हिसाब से एक लॉ भी बनाया था इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट हु विल बी कंसिडर्ड एज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इस प्रोविज़न के साथ एक प्रॉब्लम है. देखते हैं वो प्रॉब्लम है क्या. देखो, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून बनाया और उसके हिसाब से आइडेंटिफाई किया कि दीज पीपल विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड विद दिस Jammu and Kashmir Legislative Assembly granted some special rights to these people who were residents of Jammu and Kashmir. Now these people had special rights, like they were only entitled to buy lands in Jammu and Kashmir. They had some special privileges regarding educational and employment rights over others who were not residents of Jammu and Kashmir. तो अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो, जिन लोगों का नाम परमानेंट रेजिडेंट्स की तरह नहीं आया जम्मू एंड कश्मीर में और वो फिर भी जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे थे, अब उन सारे लोगों के लिए जो बेसिक सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन की फंडामेंटल राइट, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट्स भी इन लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा था. तो एक तरीके से आप समझो कि इन सारे लोगों के ऊपर भारत का संविधान अप्लाई हो ही नहीं रहा था और भारत के संविधान द्वारा जो गारंटेड सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स थे वो इन लोगों को मिल ही नहीं पा रहे थे, हु वेयर कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो फिर अब हुआ क्या आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट? अब क्या हुआ है, नाउ अ न्यू डोमिसाइल रूल हैज़ बिन एप्लीकेबल. And according to the new domicile rule, those persons and their children who have resided for 15 years in Jammu and Kashmir
or have studied for 7 years and appeared in class 10 or 12 exam in an education institution in the Union Territory of Jammu and Kashmir are eligible for the grant of domicile. अब आपको ये सारे कंडीशंस एग्जैक्ट एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आप इतना समझो कि अकॉर्डिंग टू द न्यू डोमिसाइल रूल अब जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं 15 साल से, उन सारे लोगों को अब जम्मू एंड कश्मीर की रेजिडेंटशिप स्टेटस या डोमिसाइल मिलेगी। तो इसके साथ ही फ़ायदा अब ये हुआ कि वो सारे लोग जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो सारे लोग जिनके लिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एप्लीकेबल, अब उन सारे लोगों को भी जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गई है। एंड नाउ दे आर ऑल्सो एन इक्वल party equal resident, or now they also enjoy full citizenship of India, and they also now enjoy each and every fundamental rights available to any citizen of India. So ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एज अ रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अब इन सारे लोगों को अब उनके सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हो गए हैं जो पहले इनको अवेलेबल नहीं थे। अब करंट न्यूज़ देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो हाल फिलहाल में जब से डोमिसाइल रूल बदला गया है और नए नए लोगों को डोमिसाइल दिया जा रहा है, यानी कि रेजिडेंटशिप स्टेटस दी जा रही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो वहाँ पहले से रह रहे थे बट दे वर कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट, तो अब वहाँ के लोग जो पहले से परमानेंट रेजिडेंट की तरह काउंट किए जा रहे थे, नाउ दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस न्यू डोमिसाइल रूल। उनका ऐसा कहना है कि according to this new rule, now more and more outsiders will come and settle in Kashmir, and this will change overall demographic setup of Kashmir and threaten local culture. तो जब अब सब लोगों को अलाउ कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया का हिस्सा बना दिया गया है, तो जैसे आप इंडिया के किसी और हिस्से में जा कर के सेटल हो सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वैसे ही अब आप कश्मीर में भी जा कर के सेटल हो सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। तो अब इस पे वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स थे, जो पहले जिनके पास स्पेशल प्रिविलेज थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उन सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आउटसाइडर्स विल कम एंड दे विल थ्रेटन द लोकल कल्चर ऑफ कश्मीर। उसके अलावा दे फील दैट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल पीपल विल श्रिंक। जो नौकरियां हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो लोकल लोगों के लिए अब और कम हो जाएंगे, एंड दैट विल नेगेटिवली हैम्पर द लोकल रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड मोर इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स विल डैमेज द इकोलॉजिकल ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर से आएंगे घूमने के लिए, सेटल होने के लिए, then naturally the natural ecological beauty of Jammu and Kashmir will get damaged। ये इन सारे लोगों का एप्रीहेंसन है जो पहले से जम्मू एंड कश्मीर के लोकल रेजिडेंट रहे हैं। बट इसी आर्टिकल में लिखा है, और आप इस पॉइंट को आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट न्यू रूल्स विल इनकरेज इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर। विथ मोर इन्वेस्टमेंट्स देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल कश्मीरी पीपल, एंड दिस विल ब्रिंग ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन कश्मीर Valley, and this will help in integration of Kashmir Valley with rest of India. The next article is taken from international segment. It is about Financial Action Task Force, FATF, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में समझते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्बिंग टेरर फाइनेंस एंड प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सरल शब्दों में इसका मतलब यही है, जिसका मेन दो ही ऑब्जेक्टिव है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग ना हो सके, उस फंडिंग को कंट्रोल करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग मैं पहले भी आपको कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग इज़ टर्निंग ब्लैक मनी इनटू लीगल और वाइट मनी। जैसे लॉन्ड्री में हमारे कपड़े धुल के सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस, ऑफ कोर्स इट्स एन इलीगल प्रोसेस, एंड थ्रू दैट प्रोसेस लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्लैक मनी ऑफ कोर्स आप जानते हैं, ब्लैक मनी वो सारा पैसा है जिस पे या तो टैक्स नहीं दिया गया है, या फिर वो पैसा दैट हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम सम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग। तो वो सारे काले धन को अगर वाइट मनी में कन्वर्ट करा दिया जाए, चाहे जिस भी प्रोसेस से, बहुत सारे तरीके हैं, हवाला कर दिया जाए या किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके वापस से उसको बेच दिया जाए, ऑल सच प्रोसेसेस आर नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। और इस ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है
टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अभी तक इसके टोटल 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं। Out of this 39, 37 are member countries while 2 are organizations, and 2 organizations are GCC, Gulf Cooperation Council, and European Council. So total 39 members are there in FATF. अब FATF की एक अपनी लिस्ट होती है जिसको हम FATF लिस्ट कहते हैं। उस FATF लिस्ट के बारे में ज़रा समझते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ FATF लिस्ट। फर्स्ट टाइप इज़ नोन एज ग्रे लिस्ट और वॉच लिस्ट। इस ग्रे लिस्ट में उन सारी कंट्रीज़ को रखा जाता है जिनके ऊपर थोड़ा डाउट है दैट दीज कंट्रीज़ आर आइदर कंडक्टिंग टेरर फाइनेंसिंग और सपोर्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग। उन सारे कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है या वॉच लिस्ट में रखा जाता है। वॉच लिस्ट आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि इन सारे कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखी जाएगी और इन पे ध्यान रखा जाएगा कि आगे से ये मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग ना करें। सम ऑफ द कंट्रीज़ हु हैव बीन पुट इन ग्रे लिस्ट और वॉच लिस्ट आर श्रीलंका, पाकिस्तान, सीरिया इन FATF. Some countries are blacklisted and they are also known as high risk jurisdiction. उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उन सारे कंट्रीज़ के साथ बहुत सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये जो 39 मेंबर्स हैं FATF के, वो इन सारे कंट्रीज़ के साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। दे डू नॉट ट्रांजेक्ट एनीथिंग विद दीज कंट्रीज हु आर ब्लैक लिस्टेड और हैज़ कंसिडर्ड एज हाई रिस्क जुरिडिक्शन अंडर FATF। कुछ एक कंट्री जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया अंडर FATF, दे आर नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। अब करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखो, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया ऑफ FATF सिंस 2018 itself, एंड पाकिस्तान वाज गिवन टाइम टिल अक्टूबर 2020 टू मीट 27 पॉइंट्स टू अवॉइड गेटिंग ब्लैक लिस्टेड। तो ये 27 पॉइंट्स पूरे करके पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट होने से बच सकता था। अगर इस 27 पॉइंट्स को पूरा नहीं करेगा पाकिस्तान टिल अक्टूबर 2020, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा एंड दैट विल लीड टू मोर प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान। नो वन विल कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विद Pakistan. At least the member countries of FATF will not conduct financial transactions with Pakistan, and that will create more economic problems for Pakistan. लेकिन ये न्यूज़ आर्टिकल यही कह रहा है दैट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक पाकिस्तान को 3 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो अक्टूबर 2020 से एक्सटेंशन बढ़ा करके अब जनवरी 2021 तक पाकिस्तान को टाइम दिया गया है इन 27 पॉइंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। इस आर्टिकल में यही लिखा गया है कि कैन पाकिस्तान अवॉइड गेटिंग ब्लैक लिस्टेड, क्या पाकिस्तान ये 27 पॉइंट्स को फुलफ़िल कर पाएगा। और इस आर्टिकल में लिखा गया है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान टू फुलफ़िल दीज 27 पॉइंट्स। भले ही उसको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया हो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो फार पाकिस्तान हैज़ फुलफिल्ड 14 पॉइंट्स। वो 14 पॉइंट्स फुलफ़िल कर चुका है, लेकिन जो बाकी के पॉइंट्स बचे हैं दे आर मच मोर डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान टू फुलफ़िल, जैसे कि कर्ब टेरर फाइनेंसिंग, अमेंड लॉज टू कर्ब हवाला ट्रांजेक्शन, placing sanctions against cash courier who facilitate terror groups, completing the prosecution of groups banned by UNSC, and converting madrasas run by them into formal schools. अब ये सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होने वाला है कि जो मदरसाज रन किए जा रहे हैं उन मदरसाज को फॉर्मल स्कूल में कन्वर्ट किया जाए। वो सारे ग्रुप जिनको UNSC ने बैन कर रखा है, उन सारे ग्रुप्स द्वारा बहुत सारे मदरसाज चलाए जाते हैं और उन मदरसाज में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको फिर वो वायलेंट जिहादी बनाने के लिए इंस्पायर किया जाता है। तो एक और कंडीशन ये है आउट ऑफ दिस 27 पॉइंट्स कि ये सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जिनको UNSC ने बैन कर रखा है, उन सारे टेररिस्ट ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा मदरसा उनको फॉर्मल स्कूल में कन्वर्ट किया जाए। एंड दिस पॉइंट स्पेसिफिकली दिस पॉइंट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वहाँ की किसी भी तरह के मदरसा को कन्वर्ट करके फॉर्मल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान टू फुलफिल ऑल दीज 27 पॉइंट्स एंड अवॉइड गेटिंग ब्लैक लिस्टेड एट FATF। यही इस आर्टिकल में लिखा है। The next article is taken from economy segment. It is about WTO dispute panel body, and this topic is important from our syllabus GS paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले WTO
टीओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट एस्टैब्लिशेस रूल फॉर ट्रेड अमंगस्ट मेंबर कंट्रीज़। ये तो आप सब जानते ही हैं कि जो बेसिक इंटरनेशनल रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं कि दुनिया भर के कंट्रीज एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करेंगे तो किस नॉर्म को फॉलो करेंगे, दैट नॉर्म इज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन WTO। इट ऑल्सो सेटल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंगस्ट मेंबर कंट्रीज़। तो दुनिया भर के अगर कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई मान लो ट्रेड डिस्प्यूट हो गया तो वो ट्रेड डिस्प्यूट को भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO रिजॉल्व करता है। एंड देयर आर 164 मेंबर्स countries of the world part of WTO, यानी कि ओवरऑल 98% countries of the world are part of or member of WTO. WTO was established in 1995 and India has been a member of WTO since the 1995 itself. That means India has been a founding member and headquarter of WTO is in Geneva. Members in WTO are classified in 3 categories: developed countries, developing countries and least developed country, and India is considered as part of developing countries. अब जरा WTO के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो देखो WTO के अंदर 2 मेन बॉडी है। एक बॉडी का नाम है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल पे होती है, जिसमें दुनिया के हर एक मेंबर कंट्री जो WTO का हिस्सा है वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं और इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में फिर वोटिंग के बेसिस पे कोई भी नया लॉ WTO में बनाया जाता है। जो दूसरी बॉडी है वो है एपिलेट बॉडी। तो एक बार मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में लॉ बन गया, इंटरनेशनल ट्रेड के नॉर्म्स बन गए आफ्टर वोटिंग प्रोसेस, and in this ministerial conference every country gets 1 vote. So here the principle of 1 country 1 vote is followed. एक बार जब इंटरनेशनल लॉ बन गया रिगार्डिंग ट्रेड, अब अगर दुनिया की कोई भी कंट्री इस लॉ को वायलेट करती हुई पाई जाती है, देन एनी अदर मेंबर कंट्री कैन रजिस्टर ए कंप्लेन अगेंस्ट दैट कंट्री हु हैज़ वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग ट्रेड इन द एपिलेट बॉडी ऑफ WTO. तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कानून बनेगा और एक बार जब कानून बन गया और अगर कोई भी देश उस कानून को तोड़ता है तो एपिलेट बॉडी में उस देश के खिलाफ कंप्लेन किया जा सकता है। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखो करंट न्यूज़ ये कह रहा है कि इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है ऑन सम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक टेलीफोन, सेल्यूलर नेटवर्क एंड अदर पार्ट्स ऑफ टेलीफोन सेट्स। और अब इंडिया की इस एक्टिविटी पे जापान और ताइवान ने फैसला लिया है दैट दे विल रजिस्टर ए कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया एट WTO एपिलेट बॉडी। तो इस WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर जापान और ताइवान इंडिया के खिलाफ कंप्लेन करेंगे और उनका ऐसा मानना है कि इंडिया इज़ वायलेटिंग एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट मेड एट WTO जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट है ITA एग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट अग्रीमेंट। इसका वायलेशन कर रहा है इंडिया एंड दैट इज़ वाई दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया इन दिस WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब इंडिया का क्या डिफेंस है अगेंस्ट दिस कंप्लेन? इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया का ऐसा कहना है कि देखो ये जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट अग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में ITA एग्रीमेंट कहते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, ITA 1 एंड इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ दिस अग्रीमेंट ITA 1, बट इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी ऑफ द सेकेंड अग्रीमेंट ITA 2। और जिन जिन प्रोडक्ट्स पे इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर पार्ट ऑफ दिस ITA 2, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ITA 1। तो जब इंडिया उन ITA 2 का सिग्नेटरी है ही नहीं और ये सारे प्रोडक्ट्स ITA 2 में हैं, तो इंडिया ने अगर इन सारे प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी दी है, देन ऑल्सो इंडिया शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेटिंग एनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट। एक बार जरा ब्रीफली समझ लेते हैं ये ITA 1 और ITA 2 का बैकग्राउंड क्या है। देखो ITA 1 वाज साइंड इन सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन 1996 इटसेल्फ। तो ये 1996 में ये ITA 1 साइन हो गया था जिसको इंडिया ने भी साइन किया था। लेकिन ITA 2 was signed in Nairobi in December 2015 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसको सिर्फ 50 मेंबर कंट्री ने साइन किया था और उन मेंबर कंट्रीज़ ने आपस में मिल करके एडिशनल 201 प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया था अंडर दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट। लेकिन इंडिया ने इस दूसरे वाले एग्रीमेंट को साइन नहीं किया एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नॉट अंडर कंपल्सन टू रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी और एलिमिनेट टैरिफ
ऑन दीज 201 प्रोडक्ट्स। और इस कारण से इंडिया के ऊपर इस तरह का एलिगेशन इज़ नॉट जस्टिफाइबल। ऐसा है इंडिया का डिफेंस इन दिस पर्टिकुलर केस। The next article is taken from Assam segment. It is about frequent landslide in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 disaster in Assam point of view. सबसे पहले देखो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। 21 year old woman died in a rain induced landslide in Hirimapur in Kharguli area yesterday। तो देखो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन अब ये इंसिडेंट से रिलेटेड हमसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट में लैंडस्लाइड से रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि लैंडस्लाइड होता क्यों है और लैंडस्लाइड को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। देखो जो सबसे पहला कारण है असम के अंदर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड का, वो है अर्थ कटिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। देखो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अर्थ कटिंग यानी कि अर्थ की डिगिंग, आपको पता है स्लोपी एरिया में डिगिंग कर कर के लोग वहाँ से रॉक्स निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं। तो रेनी सीजन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अर्थ कटिंग को बैन कर दिया था, फिर भी लोग इलीगल तरीके से अर्थ कटिंग में लगे रहते हैं। और इस कारण से होता क्या है कि जो स्लोपी एरियाज़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो वीक हो जाते हैं, और वीक होने के कारण कभी कभार जब बारिश होती है तो फिर वहाँ से लैंडस्लाइड हो जाता है एंड मैनी पीपल लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ सच लैंडस्लाइड्स। सो एक बार जरा टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं लैंडस्लाइड्स का। लैंडस्लाइड्स, देयर आर वैरायटी ऑफ द नेम्स गिवन टू दिस डेनुडेशन प्रोसेस। लैंडस्लाइड इज नथिंग बट देखो डेनुडेशन प्रोसेस इन विच द डेब्रिस, इस तरह का रॉक डेब्रिस, इट स्लाइड्स डाउन थ्रू अ स्लोप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड। इस तरह का डेब्रिस होगा जो किसी भी कारण से वो ढीला हो जाएगा एंड इट विल बिकम वीक, and once it becomes weak it will slide down under the influence of gravity and that is known as landslide। लैंडस्लाइड के अगर उस पर मान लो 10 या 12 मार्कर का सवाल आ जाता है तो आप लोग ये भी बताना कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड का कॉज हो सकता है इंक्रीज्ड शियर स्ट्रेस एंड डिक्रीज्ड मटेरियल स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो ग्रेविटी के कारण, ये इमेज को देखो, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण अगर इस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड शियर स्ट्रेस। तो अगर शियर स्ट्रेस बढ़ गया और मटेरियल स्ट्रेंथ इस रॉक का कम हो गया, अगर ये रॉक कमज़ोर हो गया और नीचे से ग्रेविटी का फोर्स या शियर स्ट्रेस ग्रेविटी का बढ़ गया, दोनों ही कंडीशन अगर एक साथ हो जाएंगे देन दैट विल लीड टू लैंडस्लाइड एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। अगर बहुत स्टीप लैंडस्लाइड है इस तरह का तो उसको हम कहते हैं फॉल। उसके अलावा अगर इस तरह का उससे रिलेटिवली जेंटल है जिसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक अगर लैंडस्लाइड होता है तो उसको हम कहते हैं टॉपल। उससे भी ज़्यादा अगर जेंटल है देन वी कॉल इट स्लाइड एंड इफ़ इट इज़ वेरी वेरी जेंटल देन इट इज़ नोन एज स्प्रेड। स्प्रेड से कुछ खास खतरा नहीं होता है। द मोस्ट डेंजरस वन इज दिस वन, द फॉल टाइप ऑफ लैंडस्लाइड। रेमेडियल मेजर लैंडस्लाइड को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो देखो आपने देख रखा होगा जो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होता है वहाँ पे इस तरह का नेट लगा के रखा जाता है ताकि लैंडस्लाइड हो तो भी उससे कोई नेगेटिव डैमेज ना हो। इस तरह का स्लोपिंग वॉल प्रोटेक्शन लगाया जा सकता है, रिटेनिंग वॉल बनाया जा सकता है ताकि लैंडस्लाइड को अवॉइड किया जा सके। और इस तरह का ड्रेनेज कंट्रोल हर एक थोड़े टाइम बाद, एक इस तरह का मान लो स्लोप है, अगर पहाड़ी एरिया है तो उसमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इस तरह का ड्रेनेज बनाया जा सकता है ताकि पानी जो है रादर दैन फ्लोइंग ऑन द स्लोप वो इस तरह से ड्रेनेज से होकर के निकल जाए। और अगर पानी इस तरह से स्लोप पे ना बह करके ड्रेनेज से निकलेगा देन वी कैन अवॉइड लैंडस्लाइड। अगर ओवरऑल लैंडस्लाइड की इंटेंसिटी देखी जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जिस स्टेट में आता है वो है अरुणाचल प्रदेश। टोटल लैंडस्लाइड का 38% लैंडस्लाइड सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में आता है। इवन असम इज़ वेरी मच प्रोन टू लैंडस्लाइड। पूरे इंडिया का जितना भी लैंडस्लाइड आता है उसका 13% असम के अंदर आता है और असम कम्स एट सेकेंड नंबर आफ्टर अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर आने के जो मेन कारण है उसमें से जो सबसे पहला कारण है वो है झूम कल्टीवेशन। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है जो ट्राइबल लोग प्रैक्टिस करते हैं, ट्राइबल पीपल प्रैक्टिस करते हैं झूम कल्टीवेशन। और झूम कल्टीवेशन से होता क्या है कि जो सरफेस एरिया होता है काफ़ी वीक हो जाता है, जो रॉक का स्ट्रक्चर मटेरियल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक हो जाता है एंड उसके बाद इफ़ देयर इज सम रेनफॉल देन द इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड एंड दैट लीड्स टू लैंडस्लाइड। रोड कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इज अनदर फैक्टर that leads to landslide. Increasing population and grazing
and excessive urbanization is another factor of landslide. Landslide से क्या क्या problems होते हैं? Every year more than dozen people in Assam are killed because of landslide. It creates blockage of the road. It sometimes also choke some water bodies and it leads to settlement or deposition of debris. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे लोगों की जान चली जाती है, रोड ब्लॉक हो जाता है, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है कई दफ़ा, तो वाटर बॉडीज़ भी चोक हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 485 to 487. Topic number 485 is about Genome India project. Genome India project will involve 20 leading institutions of India, including IISc Bangalore and some of the IITs. First stage of the project will look at sample of 10,000 persons from all over the country to form a grid that will enable the development of reference genome. The main aim of Genome India project ultimately is to build a grind of Indian reference genome to understand fully the type and nature of disease and traits that comprises and diverse Indian population. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 486 is about Inner Line Permit System. Manipur is the last state to join Inner Line Permit state list, and Manipur has now launched an online portal for the traveler to seek Inner Line Permit. Other states under ILP are Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram. Foreigner nationals can all apply for ILP if they have an e-visa for India. It is not mandatory to have regular tourist visa for applying permits for Northeast India for foreign nationals. An ILP is issued by the state government concerned. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 487 is about desert locusts. Major locust attacks have been observed in several countries in Western and Southern Asia and Eastern African countries. 4 species of locust found in India are desert locust, migratory locust, Bombay locust and tree locust. Desert locusts are usually restricted to semi-arid and arid deserts of Africa, near East and Southwest Asia that receives less than 200 mm of rain annually. Locust does not carry any disease that are known to harm humans. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 482 to 484 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.